Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make these beautiful carnation flowers. ये carnation flowers बनाएंगे आज के tutorial में. I hope आपको अच्छा लगेगा. So let's get started. So let's start by making a slip knot first. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now we have to chain 4. 4 chains बनाएंगे हम. 1, 2, 3 and 4. Now we'll go into the first chain that we made and we'll make a slip stitch to join it into a circle. तो अब हम ये फर्स्ट वाली जो हमने चेन बनाई थी हम उसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे ताकि हमारे पास एक राउंड सा सर्कल बन जाए छोटा सा जिसमें हम वर्क करेंगे. सो वी हैव टू वर्क इन दिस circle, in this round now, the space in the in between the circle. So we'll chain 3, 1, 2, 3 and this doesn't count as a stitch. ये stitch की तरह count नहीं करेगा. And now we have to make 14 double crochet stitches in this space. ये जो round है इस round में हमने 14 double crochet stitches बनानी है. So we'll yarn over, we'll go into the circle, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So 1, 2 and I'm working over the tail so that I don't have to weave in the end. मैं इसी के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए, मुझे बाद में weave in नहीं करना पड़ेगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. तो हमने 14 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिया. We have made 14 double crochet stitches and now we'll slip stitch onto the first double crochet stitch that we made, not on the chain 3. तो अब हम जो हमने पहला डबल crochet stitch बनाया था उस stitch पे जाके हम slip stitch करेंगे, chain 3 से slip stitch नहीं करेंगे. So we'll go on top of the first double crochet stitch that we made, we'll do a slip stitch and join. So our first round is completed. First round हमारा complete हो गया है. Let's begin with the next round. We'll chain 3, 1, 2, 3 and this doesn't count as a stitch. ये stitch की तरह count नहीं करेगा. And now the same place where we have done a join, where we did this slip stitch and we joined it, in the same stitch we have to make 2 double crochet stitches. तो इसी सेम स्टिच में जहाँ पे हमने अभी स्लिप स्टिच करके ज्वाइन किया था वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 and 2 in the same space, then 2 double crochet stitches in the next stitch. 2 double crochet stitch हम next stitch में बनाएंगे. 1 and 2, then 2 in the next. 2 next में बनाएंगे. 1 and 2, then again 2 in the next. 1 and 2. And this is how we have to complete this round. We have to do 2 double crochet stitches in each of these following stitches and then we have to slip stitch onto the first double crochet stitch that we made. And this is what you have to do for your round 2. इसी तरीके से आपने राउंड कंप्लीट करना है. 2 स्टिच हर एक स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे. सो मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई हैव कंप्लीटेड द राउंड. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है by doing 2 double crochet stitches in each of these following stitches. मैंने हर एक स्टिच में 2 डबल crochet stitches किए हैं. And now I'll slip stitch onto the first double crochet stitch that I made, not on the chain 3. तो जो हमने डबल crochet stitch बनाया था पहला उस पर हम slip stitch करके इसे join कर देंगे. Now let's begin with the round 3. Round 3 start करेंगे chain 3 and in the same place where we did the slip stitch we'll make 2 double crochet stitches. उसी सेम स्टिच में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था अभी 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे.
2 डबल क्रोशेट स्टिचेस इन द नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे और हमने सेम राउंड 2 रिपीट करना है. सिमिलरली लाइक वी डिड इन आवर राउंड 2 वी हैव टू रिपीट द सेम इन आवर राउंड 3 एंड राउंड 4. तो हमारा बस हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. एंड आप देखेंगे जब 1-2 रोज और करके तो ये थोड़ा कर्ल होना शुरू हो जाएगा. दिस विल स्टार्ट कर्लिंग एंड देन वील क्लोज इट एंड मेक इट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर. तो बहुत ही ईजी पैटर्न है और बहुत ही कम ऊन लगती है इसमें और बहुत प्यारा फ्लावर बन के रेडी हो जाता है. सो यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस. इसी तरीके से आपने हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशेट स्टिच करते जाना है. एंड देन यू हैव टू स्लिप स्टिच ऑन टू द फर्स्ट डबल क्रोशेट स्टिच दैट यू मेड. सो आई हैव कंप्लीटेड राउंड 3 एज वेल. मैंने राउंड 3 भी कंप्लीट कर लिया है. इसी तरीके से हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशेट स्टिच करके आई हैव डन 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस. एंड नाउ आई डू अ स्लिप स्टिच ऑन टू द फर्स्ट डबल क्रोशेट स्टिच ऑफ दिस राउंड टू जॉइन. You can already see it started curling and that's what we want. इसी तरीके से और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा कर्ली होते जाएगा. और once the flower is ready, this is how it will look. इस तरीके से दिखेगा. ये देखिए कितना खूबसूरत दिखेगा. कार्नेशन फ्लावर इस तरीके का बनेगा. So let's begin with the next round. नेक्स्ट राउंड भी इसी तरीके से करना है. We have to follow the same pattern for this round as well. Chain 3 at the beginning, 2 double crochet stitches in the same place where you did the slip stitch. इसी same space में जहाँ पे हमने slip stitch किया था 2 double crochet stitch बनाएंगे. 2 double crochet stitch in the next stitch, 1 2 और इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है अपना ये वाला राउंड भी. हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे स्टिच करने हैं. And we have to just keep doing 2 double crochet stitches in each of these following stitches and complete this round as well like we did the previous round. तो जैसे हमने पिछले राउंड्स किए थे उसी तरीके से करना. बहुत ही इजी पैटर्न है. एक बार आप करना शुरू करेंगे तो बहुत ही ईजीली बन जाएगा बिकॉज इसमें रिपीट पैटर्न है. वही रो हमने बार बार रिपीट करते रहना है तो बहुत ही ईजी हो जाता है. So you have to just keep repeating this 2 double crochet stitch in each of these following stitches. So I'll complete this round as well and then I'll show you what to do next. I have completed this round as well. मैंने ये वाला round भी complete कर लिया है. And now you have to do a slip stitch onto the first double crochet stitch that you made in this round. जो पहला double crochet stitch हमने बनाया था उस पे हम slip stitch करके इस round को भी join कर लेंगे. अब जो हमारा 5th राउंड है ये 1 2 3 4 राउंड हमारे 4 राउंड्स हमारे हो गए हैं. जो 5th राउंड है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी राउंड से. द 5th राउंड इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4 राउंड्स. सो फर्स्ट वील चेन 3 1 2 3 चेन 3 करेंगे. एंड जिस स्पेस में हमने अभी स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशा स्टिच बनाएंगे. In the same space where we did the slip stitch, we'll go in and we'll make a double crochet. We'll make a single crochet stitch. Then chain 3 again. 1 2 3 single crochet stitch in the next stitch. Next stitch में single crochet stitch करेंगे. फिर से chain 3 करेंगे. Chain 3 again. 1 2 3 single crochet stitch in the next stitch. एक single crochet stitch बनाएंगे next stitch में. फिर से chain 3 करेंगे. Then again we'll chain 3. 1 2 3 and we'll do a single crochet stitch in the next stitch. And this is the only thing we have to do in this round. ये पैटर्न हमने इस राउंड के लिए रिपीट करते जाना है. chain 3 1 2 3 1 single crochet stitch in the next stitch. एक सिंगल crochet stitch नेक्स्ट स्टिच में किया हमने. फिर से हम chain 3 करेंगे. 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल crochet stitch करेंगे. फिर से chain 3 1 2 3 single crochet stitch in the next stitch. This is the only thing you have to do for this round and you'll have this curly thing showing. इसी तरीके से आपने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है. This is the pattern for this round. You have to complete this round by doing this pattern. I'll complete this and then I'll show you what to do next.
ये देखिए मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया और ये कैसे कर्ल होना शुरू हो गया है. आई हैव कंप्लीटेड दिस राउंड एंड सी हाउ इट्स कर्लिंग एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट. सो लास्ट स्टिचेस लेफ्ट, मेरी लास्ट स्टिच बची है. सो आई चेन 3, 1 2 3, चेन 3 कर लिया मैंने. I'll make a single crochet stitch in the last stitch. Last stitch में मैंने single crochet stitch बना लिए हैं. Now I'll chain 3 again. 1 2 3, मैं फिर से chain 3 करूँगी. And in the first stitch from where we started, in the first stitch from where we started, we'll make a single crochet stitch in that stitch. उस stitch में भी हम एक single crochet stitch बनाएंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था. एंड देन चेन 1 एंड वील फास्टन ऑफ. तो चेन 1 करके हमने फास्टन ऑफ कर दिया. एंड वील वीव इन द एंड यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इसे वीव इन कर देंगे. और ये हमारा बैक साइड है, तो ये वाली जो टेल है इसको भी हम वीव इन कर देंगे. सो वील वीव इन दिस एंड एज वेल. तो पहले टेपेस्ट्री नीडल की मदद से मैं इसे वीव इन कर देती हूँ यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल. एंड आई विल वीव इन, जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस बैक एंड फोर्थ. थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से हम निकाल लेंगे इसे ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं. एंड देन वील कट द एक्स्ट्रा यार्न. एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे. सो अब पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ रेडी. नाउ वी हैव टू जस्ट मोल्ड इट इनटू अ फ्लावर. अब इसको हमें फ्लावर की तरह से मोल्ड करना है. तो अब क्या करना है, हमने पहले टेपेस्ट्री नीडल में थोड़ी सी यार्न लेंगे. वील टेक सम यार्न एंड पुल इट थ्रू द टेपेस्ट्री नीडल. Not much, just a little bit. And now this is the back side, this is the back side, and this is the front side. So we'll fold it like this. Instead of folding, you can just hold it like this, and you can see the second row. This is the first row and this is the second row. So we have to go through the second row like this, back and forth here like this. देखिए एक स्टिच के बीच में से जाएंगे, दूसरी स्टिच में से निकाल देंगे. राउंड हमने ऐसे पूरे राउंड में हमने ऐसे जाना है. सी, वी आर जस्ट गोइंग in between one stitch and taking out from the other in the round motion in the second row. सेकेंड रो में हम ऐसे कर रहे हैं. देखिए एक स्टिच से जाके दूसरी स्टिच में से हम निकाल रहे हैं. एंड देन लास्ट में हमने इसे टाइट कर देना है. एंड वी हैव टू जस्ट पुल इट एंड टाइटन इट एंड क्लोज इट. तो ये देखिए हमने इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ तक आ गए हैं. नाउ वील जस्ट पुल बोथ द एंड्स को हम टाइटली पुल करेंगे so that it takes a shape of a flower. तो फ्लावर की शेप में ये ऑलमोस्ट आ चुका है. ये देखिए, सॉरी. तो अब हम इसे यहाँ पे नॉट बांध के सिक्योर कर देंगे. नाउ वील जस्ट मेक कपल ऑफ नॉट्स हियर एंड सिक्योर इट वेरी टाइटली. टाइटन इट. just make 3-4 knots so that it's secure enough and doesn't open. 3-4 knots बना देंगे हम और टाइटली एकदम हमने इसे बंद करना है. और ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम कट कर देंगे. एंड वील कट द एक्स्ट्रा यार्न फ्रॉम हियर. एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे. दैट्स इट. एंड as you can see, your carnation flower is ready. Now we have to just make the base and the stem. अब बेस और स्टेम हमारा बनाना बाकी रह गया है. हमारा फ्लावर रेडी हो गया है. सो
This is the stem and this is the base of the flower. This is what we have to make and then our flower will be ready. हमें इस तरीके से उसका बेस और स्टेम बनानी है और फिर हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा. So I'll show you how to do that. Take the base part of the flower. I'm taking a darker green color. Dark green color ले लिया मैंने. And I'll make a slip knot first. सबसे पहले slip knot बनाएंगे. And now we'll chain 4. 4 chains बनाएंगे. 1, 2, 3 and 4. And now we'll join with the first chain that we made with the slip stitch. तो first chain में जाके हम slip stitch कर लेंगे और ये हमारा राउंड तैयार हो जाएगा जैसे हमने बिगिनिंग में तैयार किया था और हमने इस प्लेस में वर्क किया था उसी तरीके से हमारा ये राउंड तैयार हो गया है. सो वी हैव टू वर्क इन द स्पेस इन बिटवीन दिस राउंड. So we'll chain 3 at the beginning, 1, 2, 3 and we'll work 8 double crochet stitches in the round. तो इस राउंड के अंदर हम 8 double crochet stitches बनाएंगे. Make sure you're working in the round. 1, sorry, okay, so we'll chain 3. Sometimes the yarn troubles a lot. Chain 3 and we'll work double crochet stitches in the circle. 1, 2 and I'm working over the tail. मैं tail के ऊपर ही work कर रही हूँ जैसे मैंने पहले किया था. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो 8 double crochet stitches बना लिए हैं. Now twist it like this so that the front portion is on top. I mean the front portion is and the back portion goes inside and the front portion is outside. And we'll do a slip stitch onto the first double crochet stitch that we made. जो पहले double crochet stitch हमने बनाया था उस पे हम slip stitch करके इसे join कर देंगे. Now the next round, chain 3, 1, 2, 3 and work 1 double crochet stitch in each of these following stitches. इन stitches में हम एक एक double crochet stitch करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच हर एक स्टिच में कर लिया. नाउ विल स्लिप स्टिच ऑन टू द फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच दैट वी मेड. जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच बनाया था उस पर हम स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे. एंड विल चेन 1 एंड फासन ऑफ लीविंग अ लॉन्ग टेल. थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ के हम इसे फासन ऑफ करेंगे बिकॉज वी नीड टू अटैच दिस टू द फ्लावर. सो वी नीड अ लॉन्गर टेल. तो इसे हमने चेन 1 करके फासन ऑफ कर दिया है थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ के. सो आर दिस वील जस्ट लीव इट इनसाइड. तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है. और बेस इज रेडी. नाउ वी नीड टू मेक द स्टेम. अब हमारे को स्टेम बनानी है. सो फॉर द स्टेम आई एम यूजिंग अ थिन मेटल वायर. This kind of a metal wire. I'm using this kind of a metal wire. You can use any wire or you have any wooden stick, you can even use that, but I feel this is better because it goes through the flower easily and you can just shape it as you want. तो ये ज़्यादा अच्छा है. अगर आपको ये वायर मिल जाती है तो आप ये वायर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ईजिली
फ्लावर के थ्रू हम इसको ले जा सकते हैं और ये इजीली मोल्ड हो जाती है, ऐसे टर्न हो जाती है, तो बहुत ईजी हो जाता है. सो यू कैन जस्ट मेजर हाउ लॉन्ग यू वांट योर स्टेम टू बी, एंड I'm using it into 4 times. Like this is half, and then I'm folding it one more time, so I have a total of 4 times, so that it's sturdy enough. मैं इसे 4 बार फोल्ड करके यूज़ कर रही हूँ ताकि ये स्टर्डी हो और फ्लावर को होल्ड कर पाए प्रॉपरली. तो आपको जितनी बड़ी अपनी स्टेम चाहिए वो मेजरमेंट इनटू 4 करके आप अपनी मेटल वायर को कट कर लीजिए और फिर उसको 4 टाइम्स फोल्ड कर लीजिए. अब मैंने जैसे मेजरमेंट के हिसाब से इसे ले लिया है, अब मैं इसे कट कर लूँगी और ये वायर बहुत ही ईजीली कट हो जाती है सिजर्स से. ये देखिए बहुत ईजीली कट हो जाती है. सो यू कैन टेक द मेजरमेंट ऑफ द स्टेम, हाउ लॉन्ग यू वांट योर स्टेम टू बी, एंड देन multiply it 4 times, and then you can just fold it into half, first into half and then again into half, and then you can use it, because when we fold it into half and then again into half, then it becomes a sturdy wire. If you're using a thicker wire, then you might need only to fold it into half and it will be fine. लेकिन अगर आप भी मेरी तरीके से पतली यूज़ कर रहे हैं तो आपको 4 बार, अगर आप इसे मतलब 4 हाफ्स में करके करेंगे तो ये ईजी होगा, थोड़ा स्टर्डी होगा. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फ्लावर के सेंटर में से निकाल देंगे. नाउ वी हैव टू पुल इट थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्लावर. सो ये देखिए ये सेंटर है फ्लावर का. जस्ट ओपन इट अप अ बिट एंड यू कैन फाइंड द सेंटर एंड यू हैव टू जस्ट पुट इट थ्रू द सेंटर एंड टेक इट आउट फ्रॉम बैक लाइक दिस. तो इस तरीके से मैं इसे निकाल लूँगी. Just push it and it will come out. That's it. See, it's really easy. Then I like to twist it a bit. मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ ताकि ये एक साथ जुड़ जाए. So I'll twist it a bit like this, and then we can just add the color yarn that we want, dark green color, onto this. And one more thing we want to tell you, that when you put the metal wire, I had to remove it because both the parts were coming out from the same hole, and if that's the case, then the metal wire will come out. So you have to make sure that both the ends are coming out from the different parts. So one end is coming from this part and one end is coming from the other part. So then it will hold the flower properly. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका एक एंड एक कॉर्नर से आ रहा हो तो दूसरा एंड दूसरे कॉर्नर से आ रहा हो. तो उससे क्या होगा कि आपका ये फ्लावर प्रॉपरली होल्ड कर पाएगी मेटल वायर, नहीं तो मेटल वायर निकल जाएगी. देन नाउ वील स्टार्ट कवरिंग द स्टेम. अब हम स्टेम को कवर करेंगे. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कर रही हूँ इसे. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द यान को लीजिए, थोड़ी सी यान को ऐसे छोड़ दीजिए, लीव लिटिल बिट ऑफ यान लाइक दिस एंड स्टार्ट रोटेटिंग. सी, जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग. इसको बस ऐसे रोटेट करते जाना है. एंड द yarn we have left a bit here, you have to rotate over it as well. उसके ऊपर ही हम इसे रोल कर रहे हैं ताकि वो भी अंदर सिक्योर हो जाए. सी, you have to just keep rotating it until you cover the whole wire. जब तक आप पूरी वायर को कवर नहीं करते तब तक आपने इसे ऐसे ही रोटेट करते जाना है. तो एक बार मैं जब एंड पे पहुंचूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है. सो आई विल कवर द होल मेटल वायर एंड व्हेन आई रीच द एंड देन आई विल शो यू हाउ टू सिक्योर द यार्न. आई हैव कवर्ड द होल वायर. मैंने पूरी वायर कवर कर दी है. एंड एट द एंड what I'm going to do is I'm going to twist the metal wire upwards so that the yarn is secured,
and then cut the yarn. तो मैंने मेटल वायर जो खुला वाला पार्ट था मेटल वायर का, उसको मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा फोल्ड कर दिया है ताकि वो यार्न को वहाँ होल्ड कर ले और यार्न सिक्योर हो जाए, और मैं यहाँ से एक्स्ट्रा वाली जो यार्न है उसे कट कर दूँगी, तो ये खुलेगी नहीं। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी मेटल वायर मेरी कवर हो चुकी है। So the metal wire is covered. Now we have to add the bottom part that we made. So to add the bottom part, what we have to do is we have to just insert the metal wire in and bring it out from the center this way and just push it upwards. इसको इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे and then we'll pull it up until the second row where we have made the join, जहाँ पे हमने टेपेस्ट्री नीडल और यार्न से जैसे हमने एक वो सर्कल सा बना के जॉइन किया था, है ना, वहाँ तक हम इसे ऊपर पुल कर लेंगे. सो विल पुल इट अप एंड कवर द पार्ट जहाँ पे हमने वो शेप देने के लिए फ्लावर को वो बनाया था राउंड, वहाँ पे हम इसे वहाँ तक कवर कर देंगे ऊपर तक ले जाके. सो हैव टू जस्ट कवर इट अप लाइक दिस. ये देखिए, तो एक बार आपने ये कर लिया, फिर हम नीडल में इसे थ्रेड कर देंगे. देन वील टेक अ टेपेस्ट्री नीडल and we'll go back and forth to secure it so that it doesn't come out. तो हम बस ऐसे ही थोड़ी सी स्टिचेस में जाएंगे. we'll go in couple of stitches back and forth so that it is secured enough and it doesn't come out, ताकि ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाए और बाहर नीचे ना गिर जाए ये. तो इसे हम इसी तरीके से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे. वंस इट्स सिक्योर्ड इनफ, एक बार ये सिक्योर हो जाए तो विल जस्ट मेक कपल ऑफ नॉट्स हियर. एक दो नॉट्स बनाएंगे और फिर इसे कट कर देंगे यार्न को. सो यू कैन जस्ट मेक कपल ऑफ नॉट्स एंड देन कट द एक्स्ट्रा यार्न. दैट्स इट. नाउ आई जस्ट गो इन एंड pull the yarn from bottom, and now I'll cut the yarn from here. And that's it. Our flower is ready. This is how it's looking. This is how it's looking.